So students, today we are going to discuss three chapters. Chapter number 7, exotic underwater plants. Chapter number 8, fruit value, and chapter number 9, plants nestling grounds. Chapter number 7 is pen paper test syllabus and chapter number 8 and 9 is in subject enrichment. आज हम अपने पेन पेपर टेस्ट के एक चैप्टर को पढ़ेंगे और सब्जेक्ट इनरिचमेंट के दो चैप्टर को कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर नंबर 7 इज एक्सोटिक अंडर वाटर प्लांट्स. पानी में पाए जाने वाले अनोखे पौधे. एक्वेटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव adapted to live in the water. This can be either fresh water such as in rivers and lakes, salt water as in the sea, or brackish water means khara pani as in the estuary of a river. Some aquatic plants are partially submerged, others are totally submerged. कुछ पूरे डूबे रहते हैं पानी में, कुछ आधे डूबे रहते हैं. Aquatic plants require special adaptation for living in submerged water or at the water surface. Clear? There are many types of aquatic plants. First is fixed aquatic plants. They have hollow, light, flexible stems that bend in the direction of flowing water. Fixed aquatic plants कौन कौन से होते हैं? Plants like lotus and water lily have fixed aquatic plants. Then free floating aquatic plants. They float because they are lightweight and they spongy bodies filled with air. Plants like water hyacinth and water lettuce float freely on the surface of water. ये water के surface पे तैरते हैं. Now underwater plants क्या होते हैं? Their roots are fixed to the bottom of the pond. They are underwater plants. ये plants क्यों हेल्प करते हैं? Such plants help in cleaning up the water by removing carbon dioxide that is breathed out by aquatic animals. And plants like pondweed and tape grass remains completely submerged underwater. Now come to your chapter. Unit 2, the world of plants. Chapter number 7, exotic underwater plants. It means अनोखे पौधे जो पानी में या पानी के नीचे होते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती. The vast ocean contains a large array of plant life. जो विशाल सागर है उसके अंदर बहुत सारे पौधे हैं. Some are used as medicines and some play a major role in maintaining the equilibrium ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दवाओं में इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं. ठीक है, बैलेंस बना के रखते हैं. तो सम कैन बी हार्मफुल एज वेल, और कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द अंडर वाटर प्लांट्स using the information and their picture provided and write their names with the help of clue box given below. Clue box में spellings given है, आप spelling बहुत carefully देख के fill करोगे. ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? It is a kind of seaweed. Seaweed means समुद्री शैवाल which grows in nutrient rich शैलो ओशन बेल्ट्स. ठीक है, ये जो होते हैं इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कहाँ होते हैं? ये छिछले पानी में होते हैं, सागर के नीचे. ठीक. इट कैन बी यूज्ड एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या होते हैं? रिन्यूएबल मीन्स जिसे नया किया जा सके, जो इस्तेमाल करके पुराने से हम जिसे नया कर सकें, तो इसके यूज़ हम करते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में, सोर्स के रूप में. एंड डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन, और इसे इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई, और इसे सींचने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप होते हैं. क्या नाम है इनका? कैल्प, KELP. ठीक है, आप फर्स्ट ब्लैंक में फिल कर लोगे. नाउ नेक्स्ट
Number 2. It is flowering plant and is generally called sea grass. Its profusion implies that water is clean. ये क्या होता है? ये फूलदार पौधे होते हैं जो समुद्री घास भी कहलाते हैं। प्रोफ्यूजन मीन्स प्राचुरता, ठीक है, इनमें प्राचुरता होती है कि ये पानी को साफ भी रखते हैं। तो इनका क्या नाम है? इनको हम कहते हैं पोसीडोनिया ओशिएना। क्या कहते हैं? पोसीडोनिया ओशिएना। स्पेलिंग क्या है? POSIDONIA, पोसीडोनिया, और ओशिएना की OCEANICA। क्लियर? नाउ नंबर 3. It is an aquatic plant floating in water that bears edible fruit. In India, it is called singhara and is eaten raw or boiled. ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है जो कि पानी में तैरता है। इसके जो फल होते हैं उन्हें हम खाते हैं। हम सब ने खाया है। इसे हम फल के रूप में भी खाते हैं, इसे उबाल के भी खाते हैं, इसको हम कई फॉर्म में खाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंघारा। ठीक, तो इसका इंग्लिश में क्या नाम होता है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर कैलट्रप। ठीक है, WATER, वाटर, CALTROP, कैलट्रप। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4. It is bright violet or blue color. It is used for biomass, medical purpose, treating wastewater to make furniture और ropes. ये कैसे होते हैं? ये बहुत चमकदार, चमकीले वॉयलेट कलर के होते हैं, ठीक है, और नीले रंग के होते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बायोमास मीन्स जैव ईंधन, और मेडिसिनल पर्पस मीन्स औषधि बनाने के लिए, दवाएं बनाने के लिए, ट्रीटिंग वेस्ट वाटर और गंदे पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इनसे हम फर्नीचर भी बनाते हैं और रस्सियाँ भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या नाम है? नंबर 4 इज़ वाटर हाइसिंथ, WATER, वाटर, HYACINTH, हाइसिंथ। नाउ लास्ट, नंबर 5. It originally belongs to the South African Western Cape and Mpumalanga. It is used to adorn water gardens and aquarium. ये मूलतः कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीकन वेस्टर्न केप में, और मपुमलांगा ये जगह का नाम है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। इट इज़ यूज्ड, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये गार्डन्स को, बगीचों को सजाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, सुंदर बनाने में। इनको हम एक्वेरियम में भी रखते हैं, ये सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनका क्या नाम है? केप पॉन्डविड, CAPE, केप, POND, पॉन्ड, WEED, पॉन्डविड। क्लियर? तो बेटा आप क्लू बॉक्स से हेल्प लेके सारी स्पेलिंग्स को प्रॉपरली अपने बुक में फिल कर लोगे। हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 8 इज़ फ्रूट वैल्यू, फलों का क्या महत्व है, हम इस चैप्टर में ये देखेंगे। मोस्ट फ्रूट्स आर नेचुरली लो इन फैट, सोडियम एंड कैलोरीज. नन हैव कोलेस्ट्रॉल. Fruits are sources of many essential nutrients that are underconsumed, including potassium, vitamin C and many more. Fruits हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। Different kinds of fruits में बहुत तरीके के विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। Now let's see some fruit. This is grapefruit, मौसमी, हम इसे हिंदी में मौसमी कहते हैं। Grapefruit is highly nutritious. Eating it may reduce insulin resistance, cholesterol and help prevent kidney stones. Grapefruit may also be useful for weight loss. This is blueberries. Blueberries को हम हिंदी में नीलबद्री कहते हैं। Blueberries are rich in a few important nutrients. They have a high antioxidant capacity and immune enhancing properties. इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हम कम बीमार पड़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज़ एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? एप्पल्स आर वेरी न्यूट्रिशियस. देयर न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर may reduce the risk of disease and improve digestion. One apple keeps doctor away. These are lemons. Lemons means neebu. Okay, we are very used to seeing them in our local shops, but in fact all citrus fruits, नींबू बहुत खट्टा होता है. इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है. हम इसे बहुत फॉर्म में यूज़ करते हैं. दीज आर वाटरमेलन्स मीन्स तरबूज. इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में वाटर होता है. इसे हम गर्मी के दिनों में खाते हैं और इसको खाने से हमारे बॉडी में वाटर की कमी नहीं होती है. इसमें एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है लाइकोपेन. नाउ दिस इज स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉबेरीज आर रिच इन सेवरल न्यूट्रिएंट्स एंड antioxidants. Eating them may help control your blood sugar level and reduce your risk of some diseases. Now come to your chapter. So our next chapter is chapter number 8 and the name of a chapter is fruit value. This is our subject enrichment chapter. Now let's start. Fruits are high in vitamins, minerals and fiber. It is essential to include fruits in your daily diet to remain healthy and energetic. फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन, मिनरल और फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. अगर हम डेली अपने डाइट में, अपने खाने में एक फ्रूट खाएं तो इससे हम हेल्दी होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं. बहुत सारी एनर्जी होती है हमारे अंदर. हम जल्दी नहीं थकते, हम काम को अच्छे से कर सकते हैं और हम बहुत एक्टिव रहते हैं और हम जल्दी बीमार भी नहीं होते. तो हमने कई सारी अभी प्रॉपर्टीज़ को देखा है. तो चलिए अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आइडेंटिफाई सम फ्रूट्स गिवन हेयर बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन. राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसे हम पढ़ेंगे, पिक्चर देखेंगे और फ्रूट का नाम फिल कर देंगे. नाउ फर्स्ट इज़, पिक्चर देखते ही हमें पता चल गया क्या है ये. यस, बनाना. इट कंटेन्स प्लेंटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्या होते हैं बनाना में सबसे ज़्यादा? प्लेंटी मीन्स बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर. जो हमारे ब्लड प्रेशर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तचाप. जो हमारे रक्तचाप को नियंत्रित रखते हैं. तो ना ही हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है और ना ही लो होता है अगर हम अपने डाइट में 1 बनाना डेली खाएं. नाउ सेकंड इज़, it has lot of antioxidants, vitamins and minerals to help in digestive elements and skin irritation. क्या हुआ ये? कौन सा फ्रूट है ये? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे पाचन संबंधी बीमारियों को हम कहते हैं डाइजेस्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसको खाने से हमें अपनी पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं, हमारा स्टमक हेल्दी रहता है और स्किन इरिटेशन मीन्स त्वचा में जलन होती है, खुजली होती है, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं होती है. क्या नाम है इसका? द नेम ऑफ द फ्रूट इज़ स्ट्रॉबेरी. यस, हम इसे हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी कहते हैं. नाउ थर्ड वन इज़, इट ऑल्सो कंटेन्स हाई क्वान्टिटीज़ ऑफ आयरन एंड विटामिन ए which helps in the treatment of anemia. एनीमिया एक डिज़ीज़ है, बीमारी है. कब होती है ये? जब किसी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया होता है. एनीमिया क्या है? तो ए डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, तो ये ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सारा आयरन होता है और इसको खाने से बहुत सारा विटामिन ए भी हमें मिलता है और ये हमें ट्रीटमेंट मीन्स ये एनीमिया की बीमारी में रोकथाम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है. इसको खाने से हमारे अंदर खून की कमी नहीं होती है. इसे हम क्या कहते हैं? डेट पाम. DATE डेट, PALM पाम, डेट पाम. इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? खजूर. नंबर 4, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड
एब्डोमिनल कैंसर, ये कौन सा फ्रूट है? इट इज़ हाईली बेनिफिशियल, मीन्स ये बहुत ही ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, मीन्स जिनको कब्ज की बीमारी होती है, स्टमक से रिलेटेड जिन्हें प्रॉब्लम होती है। एंड एब्डोमिनल कैंसर मीन्स पेट से रिलेटेड कैंसर, उधर होता है हमारे पेट में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये फ्रूट बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसे हम कहते हैं पीच, PEACH, पिच, ठीक है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? आड़ू। नाउ लास्ट इज फिफ्थ, इट्स जूस इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ब्लैडर डिसऑर्डर्स। इसका जूस बहुत यूज़फुल होता है ब्लैडर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मीन्स गड़बड़ी, ठीक। फ्लू मीन्स संक्रामक जुकाम, संक्रमण हो जाता है, हमें सर्दी हो जाती है। लंग एंड प्रोस्टेट कैंसर, लंग मीन्स फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो उस सब में ये फ्रूट बहुत हेल्पफुल होता है। क्या नाम है इसका? पोमीग्रेनेट। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अनार, ठीक है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं या इसका हम जूस भी पी सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे इनको फिल कर लिया। अभी हमने फ्रूट से कई सारे फैक्ट्स पढ़े, ठीक है, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, प्लांट्स, नेस्लिंग ग्राउंड्स। Chapter number 9, Plants, Nestling Grounds. This is also our subject enrichment chapter. Plants are grown and maintained according to their better yielding capacities at different places. अलग अलग जगहों के आधार पर हम पौधों को अलग अलग तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। उनकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है, तो वो बढ़ते भी अलग तरीके से हैं और उनकी उपज भी अलग तरीके की होती है। जैसे आप देखते हो डेजर्ट में कैक्टस होता है ना, हर जगह कैक्टस तो नहीं होता। इसी तरह कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिन अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे होते हैं, जो कि हम देखेंगे। नाउ चूज द करेक्ट आंसर टू डिस्क्राइब द होम्स ऑफ द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स गिवन बिलो। जो आपको क्लू बॉक्स गिवन है उसकी हेल्प लेके आप इन ब्लैंक्स को फिल करोगे और समझोगे कि ये किससे रिलेटेड है। नंबर 1, अ प्लेस वेयर यंग ट्रीज आर ग्रोन एंड डिस्प्लेड फॉर सेलिंग। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है, बढ़ाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और फिर उन्हें दिखाया जाता है, बेचने के लिए उन्हें रखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नर्सरी कहते हैं। यस, नर्सरी, NURSERY, नर्सरी, ठीक है, जिसे हम पौधा घर या पौधाशाला भी कहते हैं हिंदी में। आप नर्सरी जाके कोई सा भी बड़े बड़े पेड़ों के भी छोटे छोटे पौधे ले सकते हो, आप घर लाके उन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हो। वहाँ हर तरीके के पौधे मिलते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, तो उसे हम नर्सरी कहते हैं। सेकेंड, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे फलों के पेड़ उगते हैं, किस लिए? आर्थिक कारण, मतलब आर्थिक मदद के लिए, ठीक है, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस। उन जगहों को हम क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। यस, ORCHARD। इसे हम हिंदी में कहते हैं बगीचे। बगीचे लोग लगाते हैं फ्रूट्स के, तो वो फ्रूट्स सेल होते हैं, बाहर जाते हैं, फ्रूट्स मैन उन्हें सेल करते हैं, ठीक है, तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं बगीचे, ऑर्चर्ड। थर्ड, a place where trees are grown in a cluster either naturally or by human beings, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पेड़ों के बहुत सारे झुंड होते हैं, झुंड में होते हैं, या तो वो खुद से उगते हैं या तो उन्हें ह्यूमन बीइंग उगाते हैं। ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्रेव, GROVE, ग्रेव, ठीक है। इन्हें हम हिंदी में उपवन भी कहते हैं या वृक्षों का झुंड, जहाँ पे पेड़ बहुत सारे होते हैं,
बहुत बड़े बड़े पेड़, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ग्रेव। नाउ फोर्थ, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स कैन ग्रोन स्पेशली फॉर वाइन मेकिंग। ग्रेप्स की खेती होती है, ठीक है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं जहाँ ग्रेप्स उगते हैं, उगाए जाते हैं, स्पेशली विशेष तौर पर किस लिए, वाइन बनाने के लिए। उन्हें हम कहते हैं विनयार्ड। क्या कहते हैं, VINEYARD, विनयार्ड। इसे हम हिंदी में कहते हैं अंगूर का खेत या अंगूर के बाग होते हैं, बहुत सारे अंगूर लटके होते हैं गुच्छों में। नाउ फिफ्थ, अ प्लेस विथ ग्लास वॉल्स एंड अ ग्लास रूफ फॉर कीपिंग प्लांट्स वार्म इन कोल्ड कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, जहाँ बहुत कोल्ड वेदर रहता है ऑल द टाइम, तो वहाँ पे प्लांट्स को कैसे रखा जाता है, उन्हें ग्लास वॉल्स में रखा जाता है, ग्लास हाउस में, जिनकी वॉल्स और रूफ ग्लास की होती है। उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है जिसमें से उन्हें प्रॉपर सनलाइट भी मिलता है, ठीक है, तो उसमें प्लांट्स की केयर की जाती है, उसे हम कहते हैं ग्लास हाउस। ठीक, फैक्ट फाइल में क्या गिवन है, द साइंस, प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ विनयार्ड प्रोडक्शन इज नोन एज विटीकल्चर। साइंस, वो साइंस जिसमें, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पढ़ते हैं या सीखते हैं किसके बारे में, वाइन बनाने के बारे में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है। अभी आप आगे क्लासेस में जाओगे तो इन सारे टर्म्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो वी कंप्लीटेड। सो दीज आर द पिक्चर ऑफ नर्सरीज। नर्सरी में सभी तरीके के पेड़ों के पौधे मिलते हैं, छोटे छोटे पौधे जिन्हें हम अपने घरों में लाके लगा सकते हैं। द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचे, जहाँ फलों के बहुत सारे पेड़ एक साथ लगाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्चर्ड कहते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रेव, जहाँ पेड़ों को एक साथ झुंड के रूप में लगाया जाता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विनयार्ड, यहाँ अंगूर की खेती होती है, अंगूर के खेत, अंगूर के बाग को हम विनयार्ड कहते हैं। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्लास हाउस, जहाँ हम ठंडी जगहों पर प्लांट्स की केयर करते हैं। सो अब आप चैप्टर नंबर 8 और 9 को बुक में कंप्लीट कर लोगे। आई होप आपको जितना कुछ भी मैंने बताया वो समझ में आया, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने दिए हुए कॉपी वर्क को अपने GK कॉपी में करिएगा। सो हमने आज 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।